माननीय मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय आवासन व शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, माननीय सचिव आवासन व शहरी कार्य श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, माननीय सचिव उच्चतर शिक्षण विभाग श्री अमित खरे जी, माननीय सचिव नगर विमानन मंत्रालय श्री प्रदीप सिंह खरोला जी, प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, प्रधान महानिदेशक मीडिया एंड कम्युनिकेशन श्री दत्वालिया जी, प्रेस और मीडिया के सभी सम्माननीय सदस्यगण, उच्चतर शिक्षा विभाग, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से उपस्थित सभी सदस्य अधिकारीगण और पीआईबी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी राज्य सरकारों के प्रधान सचिव, अधिकारी महोदय, स्मार्ट सिटीज़ और नगर पालिकाओं के अधिकारीगण, भारत के सभी विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए अधिकारी और छात्रगण और वो सभी तमाम सदस्य जो नागरिक जो पीआईबी यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस समारोह को देख रहे हैं, मैं आप सभी का इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं कुणाल कुमार, संयुक्त सचिव, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, शहरी व आवासन कार्य मंत्रालय। किसी के सपनों को उड़ान देने से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होती है। राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान देने से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं होता है। आज का हमारा प्रोग्राम ट्यूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम हमें इन दोनों ही चुनौतियों से रूबरू कराता है। हमारे युवक जब शहरी प्रशासन की चुनौतियों को करीब से देख पाएंगे, मुश्किल प्रकल्पों पर काम करेंगे, वह संवेदनशीलता, सहकार्यता व सामूहिकता के गुणों को आत्मसात करेंगे, तब सही मायने में इस देश का युवा उसकी शक्ति बन के उभरेगा और राष्ट्र निर्माण को समर्पित हो आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेगा। ट्यूलिप is a program to provide internships to young Indian graduates in all urban local bodies and 100 smart cities of the country. It fulfills twin objectives of one, providing experiential learning to youth, thereby increasing their value to society, and two, to promote nation building through incorporation of fresh ideas and energy into urban governance in our cities. इस छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ मैं दोनों माननीय मंत्री महोदयों के उपलब्धता में मेंबर सेक्रेटरी AICTE और मैं खुद स्टेज पर आकर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान करेंगे। दोनों ही मंत्री गणों को मैं अनुरोध करूंगा कि इस आदान प्रदान के लिए वो कृपया अनुमति दें। धन्यवाद। Namaskar, good morning everyone. Honorable Minister for Human Resources Development, Shri Ramesh Pokhrial Nishank ji, Honorable Minister for Housing and Urban Affairs, Shri Hardeep Singh Puri ji, Secretary Higher Education, Shri Amit Khare ji, Secretary HUA, Shri Durga Shankar Mishra ji, Secretary Civil Aviation in the audience, Pradeep Singh Kharola ji, DG Media, KS Datwalia, he is here. Persons from the media, faculty members, deans, HODs, vice chancellors who are viewing this particular very important program for empowering our students, youth, in order to get internships in various types of activities which are going to be involved. Our Honorable Prime Minister's vision of
getting demographic dividend and achieving that has been translated into some sort of a announcement which was made by Honorable Finance Minister in the budget speech in February. Nirmala Sitharaman ji talked about providing internships to graduates in about 4,400 urban bodies. This was in February, and immediately Ministry of Housing and Urban Affairs took it up, and within a matter of just 2 to 3 months, we came out with a program where we can create a portal which was going to be launched today by the two honorable ministers, which was prepared and made ready by the team of AICT, headed by my friend here who is sitting in the audience, Chandrasekhar Buddha, who has joined as Chief Coordinating Officer, along with two students from Graphic Era University. They were interning in AICT, Akash Pandey and Shivanshu Gupta. And it is a wonder that something which is of an enterprise level software tool, which is a portal, which is absolutely robust, was prepared and created within 2 months. I should also thank the officials of the Ministry of Housing and Urban Affairs who gave a lot of ideas to improve upon the portal, and both the teams, MOHA and also HRD Ministries teams and AICT worked together as a team, and this dream has come true. So what was announced in the budget in a matter of 3 to 4 months is practically available. More than about 44,000 internships are likely to be available through 4,400 urban bodies and 100 smart cities. So I think I congratulate both the ministries for taking this step forward and coming of age. मेरे ख्याल से इसके अलावा AICT ने कोविड-19 टाइम में जब लॉकडाउन था काफ़ी अदर इनिशिएटिव्स को भी हाथ में लिया हुआ था, उसके बारे में भी मैं कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने टीचर्स ट्रेनिंग का महत्व देखते हुए निटर्स के माध्यम से एक कोर्स लॉन्च किया हुआ था 8 मॉड्यूल वाला, और इसको जब तक टीचर्स कंप्लीट नहीं करेंगे उनको रेगुलराइजेशन नहीं होगा, और बाद में प्रमोशन के लिए भी इसको हमने लागू किया गया है। तथा हमारे जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पहले क्लासरूम में होते थे तो उसको हमने ऑनलाइन मोड में लिया हुआ है, और आज खुशी की बात यह है कि 50 के ऊपर प्रोग्राम अटल एकेडमीज़ के अंदर नए जो सब्जेक्ट्स आ रहे उभर रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन, ये सभी कोर्सेस हम ऑनलाइन मोड में 50 के ऊपर वर्कशॉप्स किए हैं 5 दिन के, और फैकल्टी को ट्रेनिंग दिया गया है, और ये सभी अभी करिकुलम में लागू किए जा रहे हैं। और इसकी महत्वता ये भी है कि एक एक प्रोग्राम में पहले हम 50 लोगों को ही ले सकते थे, ये ऑनलाइन मोड में 200, 500, कई प्रोग्राम में 1000 के ऊपर भी लोग इसमें शामिल हुए हैं। तथा हमारे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ और स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के भी वर्कशॉप 15 के ऊपर हुए हैं, जिसमें अनेक वाइस चांसलर्स, डीन्स तथा फैकल्टी मेंबर्स को ट्रेनिंग दी गई है, और इसको भी पूरी तरह से लागू दिया जा रहा है। और हमारे यहाँ रिसर्च के लिए बढ़ावा देने के लिए रिसर्च के बारे में भी 3 सेमिनार हमने ऑर्गेनाइज किए, ऑनलाइन सेमिनार्स। और AICT की तरफ से एक नीट पोर्टल 5 महीने पहले शुरू हुआ था, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजीज़। इसके तहत ये जो अलग अलग टूल्स और प्रोडक्ट्स है, जिसके तरीके ऐसे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग ये लागू करने के लिए ये प्रोडक्ट्स हमारे पास थे, इसमें फ़ी देनी पड़ती थी, लेकिन अभी काफ़ी कंपनियों ने उसको मुफ्त में देने का अपना निर्णय लिया, और काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका लाभ हो रहा था। और उसके अलावा कई नई कंपनियां हमारे साथ जुड़ गई, और मेरे ख्याल से एक महीने में 1 करोड़ के ऊपर स्टूडेंट्स ने इसको देखा हुआ है, और करीब करीब 10 लाख छात्र इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कोविड होते हुए भी ये सब कार्य जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो ले रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कार्य है। और आज ये तुलिप जो प्रोग्राम है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, इसका लॉन्च करने के लिए मैं दोनों मिनिस्टर्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो करेंगे। और इसके अलावा हमारे जो MOU हुआ है, इसको आगे बढ़ाते हुए और भी ज़्यादा इंटर्नशिप्स
कॉलेज में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी देने की सुविधा हम करने की कोशिश करेंगे। और अगले 5 साल में बाकी सभी इंडस्ट्रीज़ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ काम करते हुए करीब करीब 1 करोड़ इंटर्नशिप्स को जन्म देने की हमारी जो संकल्पना है उसको साध्य करने के दिशा में हम काम करते रहेंगे। इसे कहते हुए मैं 4 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय मानव संसाधन मंत्री जी, माननीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री जी, हमारे कलीग सेक्रेटरीज, बंधुओं, अभी आज का जो कार्यक्रम है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, जिसमें पूरे देश भर से तमाम सारे विश्वविद्यालयों, इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडी से, राज्य सरकारों से लोग जुड़े हुए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट स्पीच में की थी कि द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू स्टार्ट अ प्रोग्राम वेयर बाय द अर्बन लोकल बॉडीज अक्रॉस द कंट्री वुड प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू फ्रेश इंजीनियर्स फॉर ए पीरियड अप टू 1 ईयर। ये पहले बार हिंदुस्तान में, पहले बार, मतलब मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि देश में पहले बार इस प्रकार की व्यवस्था हुई, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने ये घोषणा की कि जो यंग ग्रेजुएट्स हैं उनको हम अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ जोड़ेंगे एज ए इंटर्न। इसके पहले कभी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और ये घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है यूथ को पूरा उपयोग करने के लिए, जो देश का एक हमारा $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन इकॉनमी तक बढ़ने के लिए यूथ की पूरी क्षमता को कैसे उपयोग करें, उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। माननीय वित्त मंत्री जी की इस घोषणा के बाद हमारे मंत्रालय ने मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत AICT, जिसमें ससबुद्दे साहब को आप सुन रहे थे, AICTs के साथ मिल करके हमने एक और विजन माननीय प्रधानमंत्री जी का है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। कैसे चीज़ों को आसान से आसान किया जाए, हाउ टू ब्रिंग ईज़ ऑफ लिविंग इन द पीपल्स लाइफ, कैसे उसको हम लोग इंश्योर करें। इन चीज़ों को देखते हुए कि हम लोग कैसे करें कि इतनी बड़ी चीज़ पूरे देश भर में हम लोग सारे अर्बन लोकल बॉडीज में करें। कहीं से भी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति किसी विषय में ग्रेजुएशन कर रहा है जो कि अगर हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए यूज़फुल है, तो कैसे वो जुड़े आसानी से। जैसे उदाहरण के लिए सर मुख्यमंत्री रहे हैं मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री जी उत्तराखंड के, अगर देहरादून का कोई बच्चा त्रिची में ट्रेनिंग कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो इंजीनियरिंग की या प्लानिंग की पढ़ाई कर रहा है, और वो चाहता है देहरादून में आकर के ट्रेनिंग करने के लिए, अभी उसके पास कोई साधन नहीं है। इंटरव्यू देने के लिए भी उसको आना पड़ेगा, अगर वो आए तो इंटरव्यू देने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। देहरादून में है भी ट्रेनिंग कि नहीं, भी ट्रेनिंग व्यवस्था है कि नहीं है, इस समय कोई ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत, कुछ भी किसी प्रकार का बिल्कुल डार्कनेस में हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी की का एक विज़न है, जिसमें आपको मालूम है कि देश का स्थान 142 से बढ़कर के 63 यानी 79 स्थान जंप किया, उसको हम लोगों ने आगे बढ़ करके हमारे दोनों मंत्रालयों ने एक पोर्टल तैयार किया, और ये पोर्टल कंप्लीटली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, चाहे वो क्या क्या उनको इस बार उन्होंने सोचा कि अर्बन प्लानिंग के बारे में करेंगे, इंजीनियरिंग के बारे में करेंगे, इनोवेटिव फाइनेंस पर किस विषय में करेंगे, कितने लोगों को लेंगे, क्या क्या काम करेंगे। यहाँ पे एक और मैं बात आपको जोड़ना चाहता हूँ। अभी हाल में जो माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ एक घोषणाएं की थी, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा, जो कि अभी एक ऑर्डर के, एक आदेश के माध्यम से सारे राज्यों को जा चुका है, और हमारे मंत्रालय ने ऑलरेडी उसके ऊपर हमने इंस्ट्रक्शन जारी की है, जिसमें राज्यों का बोरोइंग कैपेसिटी 2% बढ़ाने की है। उस 2% में 0.25% हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ की कैपेसिटी बढ़ाने के बारे में, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाने के बारे में अगर वो करेंगे तो उनको 0.25% का उनको इंटाइटलमेंट होगा, और 0.25% का 1/3 ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन परमिट है उसमें है, और ओवरऑल जो 0.5% पॉइंट्स अगर 3 चीज़ों को करेंगे वहाँ भी है, यानी लगभग 0.4% उनका जो इंटाइटलमेंट तभी होगा जो इस काम को करेंगे।
अब राज्यों को इस प्रकार का चीज़ करने की उनके पास कैपेसिटी नहीं है। अगर वो करें तो अब ये यंग ग्रेजुएट्स को ले सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से, कि जिससे कि वो लाएं और उनकी कैपेसिटी को यूज़ करें। इट्स ए विन 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 सिचुएशन फॉर एवरीबडी। बच्चों के लिए विन विन सिचुएशन है, उनको एक्सपोजर होगा इस हमारे अर्बन सिटीज़, हमारी कॉरपोरेशन कैसे काम करती है, टाउन एरिया कैसे काम करती है, नगर पालिका काम करती है, कैसे काम करती है और क्या कर सकते हैं हम, उनमें एक झिझक टूटेगी। और दूसरे तरफ सिटीज़ को फ़ायदा होगा, उनके उस कैपेसिटी को यूज़ करेंगे। सरकार को और इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। इंडस्ट्री को ऐसे लोग जिनकी कैपेसिटी आज इतनी बड़ी संख्या में, पूरी इंडस्ट्री एक हमारी कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की इंडस्ट्री है, वहाँ पे ऐसे लोग जो वास्तव में धरातल पे काम किए हुए हैं, उनको पहुँच करके उनके उस कैपेसिटी को यूज़ करेंगे। इट इज़ ए विन 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 फॉर एवरीबडी एंड अल्टीमेटली हु इज़ द विनर? द कंट्री इज़ द विनर। सो बिकॉज वी आर यूजिंग द यूथ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ये हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, जिसको हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट स्पीच में कहा, उसको बेस मान करके हम लोगों ने शुरुआत की। सर, इसमें कंप्लीट फ्रीडम, जो हमारा जो पोर्टल हमने तैयार किया, उस पोर्टल के बारे में डिटेल आप कोई भी अभी तुरंत हम इसको, जब हमारे दोनों मंत्री गण इसको जो है रिलीज करते हैं, इस पोर्टल को जब लॉन्च करेंगे, ये कंट्री वाइड पूरे देश भर में 24/7 365 डेज हमेशा के लिए ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आप इसमें बच्चे को फ्रीडम है, आप अपना बना करके, आप डिटेल बना करके अपने क्रेडेंशियल शेयर करिए। आप सेलेक्ट करिए कि हम ऐसा है कि मैं देहरादून का रहने वाला हूँ, मैं देहरादून चाहता हूँ, पौड़ी गढ़वाल चाहता हूँ, मे बी नजीबाबाद चाहता हूँ, ये हमारे 4-5 जगह वहाँ मैं चाहता हूँ, उसको वो बता सकता है। मैं फला विषय में कर सकता हूँ, हमारे ये स्किल में सीखना चाहता हूँ। आपको हर एक चीज़ आपको अपने बारे में बताने का कंप्लीट फ्रीडम है, जो दूसरे के लिए विजिबल होगा। दूसरे तरफ जो हमारी अर्बन लोकल बॉडी है, उनको कंप्लीट फ्रीडम है। अभी वो स्टार्ट करते, केवल हम इनोवेटिव फाइनेंस चाहते हैं देहरादून में, ये कैसे हम लोग अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार कर सकते हैं, कैसे हम लोग जो है हम अपने अर्बन प्लानिंग को सुधार कर सकते हैं, कैसे हम लोग हमारा जो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है उस एस्पेक्ट को कैसे सुधार कर सकते हैं, वो अपना बताएंगे। स्वच्छ भारत का कार्यक्रम चल रहा है, कैसे हम लोग इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में कहेंगे। आप स्टाइपेंड तय करेंगे, उसको क्या क्या सुविधाएं देंगे, वो सारा बता सकते हैं। आप उस बच्चे को आने जाने के लिए कुछ उसको सुविधा क्या देंगे, कितना पैसा देना चाहते, कंप्लीट फ्रीडम आपके लिए है। आप कैसे इंगेजमेंट के टर्म्स होंगे वो भी आपको है। और यहाँ तक कि जब आप पूरा करेंगे, अपना इंटर्नशिप पूरा करेंगे, तो सर्टिफिकेट भी देने के लिए आपको कहीं अलग से कुछ छपाने की जरूरत नहीं है। इसी हमारे जो पोर्टल के माध्यम से आप सर्टिफिकेट ऑनलाइन दे सकते हैं। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये सारा का सारा एक रिपोजिटरी हमारी तैयार हो रही है। कोई भी इंडस्ट्री, ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो इस प्रकार के स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, अगर वो देखना चाहें कि कई जगह फ्रॉड होता है कि उनके पास ये सर्टिफिकेट सही है कि गलत है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि इस बच्चे ने फला चीज़ का सर्टिफिकेट ये देहरादून में ये करके लिया कि नहीं लिया, उसकी कैसी परफॉर्मेंस है। इट्स ए कंप्लीट फ्रीडम टू एवरीबडी। यहाँ पे आप उसको इंटरव्यू करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली सेट अप इंटरव्यू। आज कल सवेरे 10 बजे हम इंटरव्यू करेंगे, यू कैन बी ऑनलाइन थ्रू दिस पोर्टल और आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से दिस प्रोवाइड्स कंप्लीटली यूथ के लिए भी, हमारे जो है मार्केट, इट प्रोवाइड्स ए मार्केट रेडी पीपल जो एक बार तैयार होंगे ट्रेनिंग के बाद। इसके लिए हमने व्यवस्था की है कि जब आप अपना पूरी करते हैं पढ़ाई, उससे 1.5 साल तक कभी भी आप इंटर्नशिप में आ सकते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये जो पोर्टल बना है, मैं दोनों माननीय मंत्रीगण के संज्ञान में निवेदन करना चाहूँगा कि ये पोर्टल बना है, इंटर्न्स ने बनाया, AICTE के इंटर्न्स ने बनाया। आप सोचिए उनका कितना अच्छा काम है। इसे हमारी मिनिस्ट्री के फेलोज ने बनाया, स्मार्ट सिटी के फेलोज ने बनाया। और ये दिस इज अ स्मार्ट मूव, आई कैन से इट्स ए स्मार्ट मूव। इसे जो हमारी स्मार्ट सिटी में हम लोग बहुत सारी, थोड़ा सा मैं बाद में शेयर करूंगा, स्मार्ट सिटी में जो हम काम कर रहे हैं कोविड के दौरान, तो इससे स्मार्ट मूव टू डू, जो कि हमारे फेलोज ने और आपके इंटर्न से मिलकर इस काम करा। तो मैं पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा, इन्होंने इतना अच्छा काम किया। इसमें हर एक स्टेक होल्डर का क्या काम है, हर एक स्टेक होल्डर, जैसे हमारा महुआ है, गाइडलाइंस हमने आज अभी जो माननीय मंत्रीगण जो लॉन्च करेंगे, तुरंत मेरी गाइडलाइंस अभी सारे चीफ सेक्रेटरीज को, सारे स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को, तुरंत लोकल बॉडीज़ को हमारे वेबसाइट पे भी आ जाएगी। इट्स ऑल रेडी। ये काफ़ी हमारे पीछे मेहनत कर रखी है। जो हमारे स्टेट यूटीज़ को, उनको हम हैंड होल्डिंग का काम करेंगे, बताएंगे आप कैसे उपयोग करेंगे।
इसके लिए भी हमने एक सेटअप किया कि हम लोग एक पूल तैयार करेंगे ट्रेनर्स की, कि जो कि सारे अर्बन लोकल बॉडी को बताएं कि आप इसका कैसे इफेक्टिवली प्रयोग कर सकते हैं। AICT लोगों को इनके बारे में पूरा पीछे बैकग्राउंड पे जितनी सारी इसको जरूरत है वो सारा काम करेंगे। हमारी ULBs को क्या काम, एवरीथिंग सारे के सारे डिटेल हमने दे रखे हैं, बच्चों की डिटेल दे रखे हैं। और मैं ऐसा लक्ष्य करता हूं कि इस साल तक हम कम से कम तो 25,000 लोगों को इसमें हम जोड़ देंगे, कम से कम 25,000। मैं इस तरह से कर रहा हूं कि हमारे लगभग 4,500 अर्बन लोकल बॉडीज हैं, मिनिमम 5 का एवरेज में मान, कहीं पे 10 होंगे, कहीं पे 2 होंगे, एवरेज 5 का मान के चलते हैं। हमारी 100 स्मार्ट सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी कम से कम 10-10 करेंगे। ऐसे हम 25,000 से ज़्यादा लोगों को इंटर्न्स हम अलग अलग विषयों पर इस बार ले आएंगे। इससे आउटकम क्या होगा मैंने पहले ही आपको ब्रीफली सारा बता दिया, इसलिए आई डोंट नीड टू रिपीट कि इससे क्या क्या आउटकम होंगे। इट इज़ विन 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 एंड ओवरऑल विन फॉर द कंट्री, बिकॉज इफ़ द यूथ, अगर उनको सही से जो बच्चे निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छी खासी पढ़ाई करते हैं, 5 साल तक जॉब ढूंढ रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल पा रहा, सही जॉब नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि उनका अनुभव नहीं है। अब आपको रियल ऑन ग्राउंड काम करते हुए कि आप हमारे स्वच्छ भारत के आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, प्लान तैयार करेंगे, आप ये सब तमाम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट करेंगे, आपका रियल अनुभव होगा, जिससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, आपके मार्केट रेडनेस बहुत हाई हो जाएगी। और दिस आई मीन स्मार्ट मूव डन बाय द 2 मिनिस्ट्रीज इज गोइंग टू हेल्प इन टू दैट। मैं सर आपकी इजाज़त से, मैं चूँकि ये एक स्मार्ट हमारा इसके बारे में कह रहे हैं, मैं ब्रीफली जो है हमारी जो स्मार्ट सिटीज़, 100 स्मार्ट सिटीज़ है, उन्होंने क्या काम किया, यहाँ से तमाम सारे हमारे पत्रकार बंधु हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार के काम, और ये बहुत संक्षेप में है। लेट मी थैंक यू हमारी जो है, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंटेड मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत ह्यूज कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं द वे स्मार्ट सिटीज़ हैव डन। जिस प्रकार के काम कोविड-19 के दौरान किए हैं, इसके लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, बहुत अच्छे। तमाम लोगों ने मुझसे बात करके बताया कि आपका ये सही जैसे हो रहा है। मैं उसका एक छोटा सा स्नैपशॉट आपको 4-5 स्लाइड में देना चाहूँगा जो हमारे स्मार्ट सिटी ने किया इसके बारे में। सबसे पहले टू स्टार्ट विद, जो हमारी पूरी 100 स्मार्ट सिटीज़ का टोटल प्रोजेक्ट जो प्रपोजल है, वो करीब 2,205,000 लाख करोड़ का टोटल पोर्टफोलियो है, जो कि लोगों का प्लान है। और आज की तिथि में लगभग 1,65,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हमारे टेंडर्ड है या ऑन ग्राउंड इसमें इम्प्लीमेंटेशन में है या कंप्लीट हो चुके हैं। 1,65,000, नियरली 80%। अगर किसी को कोई डाउट हो, एक डिटेल हमारी वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे, एक सिटी वाइज डिटेल कहाँ क्या काम हुआ, सारा अवेलेबल है ऑन द स्मार्ट नेट ऑन आवर वेबसाइट। इसमें से 60%, लगभग 1,24,000 करोड़ के काम हमारे ग्राउंडेड हैं, यानी काम चल रहे हैं या काम कंप्लीटेड है, और लगभग 27,000 करोड़ यानी 13% के काम कंप्लीटेड है। मैं इसके पीछे बैकग्राउंड ही बताऊंगा, क्योंकि हमारा तो 2015 में यह लॉन्च हुआ, 2018 जून तक हमने सारी स्मार्ट सिटीज़ को फाइनली आइडेंटिफाई किया, और वी हैव ए 5 years विंडो टू कंप्लीट दिस। थोड़ा सा जरूर इसमें सेटबैक हमें लगेगा कोविड के नाते, लेकिन वी आर राइट ऑन ट्रैक टू कंप्लीट ऑल दिस। कुछ फिजिकल चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि आज 47 स्मार्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जब पहले बार हमारे माननीय मंत्री जी जो कि फॉरेन सर्विस से है, जब इन्होंने देखा पहला लॉन्च, तो उन्होंने कहा आपको ऐसा लग रहा था जैसे नासा का अनुभव हो रहा था। दिस इज वी हैव क्रिएटेड अ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम फॉर द सिटी। जहाँ भी स्मार्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स है, इट कैन टेक केयर कंप्लीट जितनी सारी हमारी सिविक चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को वो कैसे ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम जिसे काम करते हैं। 47 चल रहे हैं, 34 हमारे बहुत जल्दी उद्घाटन हो जाएंगे। दे आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। हमारे जो है अर्बन स्पेसेस 51 कंप्लीट है एंड 92 कंप्लीशन की पोजीशन में, थोड़ी से आगे पीछे अभी डिटेल थोड़ा डिले हो सकता है। 91 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट, इसे ह्यूज, ऑलमोस्ट लाइक 20% पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इतना पब्लिक का पार्टिसिपेशन है। 91 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड है और 203 प्रोजेक्ट्स अंडर प्रोग्रेस है। हमारे जो स्मार्ट रोड मीन्स जहाँ पे आपको इट्स ए गुड एक्सपीरियंस टू वॉक ऑन द रोड, टू साइकिल ऑन द रोड, टू बी ऑन द रोड, ऑन द व्हीकल और एनीथिंग, आपको एक अलग किस्म का अनुभव होगा। ऐसे हमारे 151 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड है, 373 प्रोजेक्ट्स अंडर प्रोग्रेस है। हमारे 67 प्रोजेक्ट स्मार्ट वाटर के 24/7 यूजिंग द सेम रिसोर्सेज बट
working smartly so that we are able to use this water. 167 under progress है, 41 हमारे स्मार्ट सोलर के प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है, 53 अंडर प्रोग्रेस है. हमने कैसे इसको यूटिलाइज किया स्मार्ट सिटी को ड्यूरिंग कोविड? पहला, इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, इंफॉर्मेशन मैनेज करने में, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने में वाइडली यूज हुआ है. सारे के सारे हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को काफ़ी प्रयोग हुआ है. बहुत सारी मुझे डिटेल, चाहे वो आगरा, पिंपरी, ये तो कुछ एक हमने स्नैपशॉट दिया है, डिफरेंट किस्म के इंफॉर्मेशन, जिससे लोगों के मन में भय न हो, डर न हो, उनको सही इंफॉर्मेशन मिल सके. ये कंप्लीट, इट हैज़ वर्कड एज ए गुड इंफॉर्मेशन कंड्यूट फॉर getting the information, processing the information and passing in the information to public so that they are able to fight the war against this COVID with a much more confidence. It's a very good tool for communication. Communication में चाहे डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में, आपके जो है किसी भी ग्रॉसरी का सामान पहुंचाने के लिए, एसेंशियल्स को पहुंचाने के लिए, जिस प्रकार के कोई भी कम्युनिकेशन हो, बिकॉज इट हैज़ गिवन यू सच ए वाइड कवरेज. पूरे शहर भर में आपके कैमरे लगे हुए हैं, पूरे शहर भर में आपके पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगे हुए हैं. ये सारी चीज़ें पहले बार हिंदुस्तान में हो रही हैं और दिस हैज़ गिवन अस ए काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि हम इसको और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं. इन मैनेजमेंट, मैनेजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विसेज, आप सोचिए कि जो सूरत का ट्रैकर, कोविड ट्रैकर ऑफ सूरत हैज बिकम सो फेमस, इसको कितने सारे लोग और तमाम लोगों ने उसकी कॉपी किया, एक सिटी से दूसरे सिटी, दूसरे से तीसरे, तमाम जगह गया. एक somebody who has been infected, he has been tracked. और यही नहीं, वो घर से बाहर निकलता है वो भी मालूम चल जाता है, बाहर निकल करके कैसे करना, कंप्लीट ट्रेसिंग. आपकी जो हमारी क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे क्या सर्विसेज हो रही हैं, हमारी मेडिकल की फैसिलिटीज़ कहाँ पे है, कहाँ पे हमारी क्वारंटीन की फैसिलिटी है, कितनी हमारी आइसोलेशन बेड्स हैं, कहाँ पे हमारे जो है ICU के हैं, कहाँ ऑक्सीजन की फैसिलिटी, एवरीथिंग, सो दैट यू आर एबल टू, यू डोंट वेस्ट योर टाइम. स्मार्टनेस इज नथिंग बट, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 जून 2015 को जब शुरुआत किया था, लॉन्च किया था इस प्रोग्राम को, तो विज्ञान भवन में उन्होंने पूरे स्मार्ट सिटी प्रोग्राम को कहा था, स्मार्टनेस इज नथिंग बट गेटिंग मोर फ्रॉम लेस. केवल ये 3 शब्दों में, गेटिंग मोर फ्रॉम लेस, इतने शब्द में उन्होंने पूरे स्मार्टनेस को डिफाइन कर दिया था. यू आर स्मार्ट if with the same resources you are able to serve far more people, far more services. तो ये जो है, इसको कैसे हम लोग यूज़ करें हैं, ये हमारा स्मार्टनेस का जो एग्जाम्पल है. प्रिपेयर्डनेस, फ्यूचर में अगर कुछ आउटब्रेक होता है, प्रेडिक्टिवनेस, बेंगलोर में इंडस्ट्री ने, हमारे स्मार्ट सिटी ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, एकेडेमिया ने, इन सब ने मिलकर के एक मॉडल तैयार किया है, स्मार्ट प्रेडिक्टिव मॉडल, कि आप आगे के लिए सोच सकते हैं कि आगे का क्या मूवमेंट होगा. एंड इट इज़ एक्यूरेट टू अ वेरी गुड एक्सटेंट. उसको सही तरीके से उसको हम आगे उसको ट्रेस कर सकते हैं. नाउ मेनी अदर सिटीज़ आर फॉलोइंग दैट. इसके बारे में एक जोन वाइज, एक कंटेनमेंट एरिया वाइज कैसे उसको कन्फाइन करके एक चीज़ को कैसे आप ट्रेस कर सकते हैं. दिस इज़ व्हाट आवर वॉर रूम्स इन द स्मार्ट सिटीज़ हैव शोन. और यही नहीं, बल्कि स्मार्ट सिटी में हमने एक पूरे वेंडर्स की रिपोजिटरी तैयार कर दी हमारे स्मार्ट नेट के ऊपर. अगर आपको कुछ करना है, सारा का सारा वेंडर्स की रिपोजिटरी हमारे पास है, प्रोजेक्ट्स की हमारे पास रिपोजिटरी है, जितने हमारे RFPs उनकी रिपोजिटरी हमारे पास है, बेस्ट प्रैक्टिस रिपोजिटरी है. आई मीन एट वन प्लेस, दैट इज ए स्मार्टनेस. यू डोंट हैव टू गो अराउंड एंड मार्केट अराउंड हियर एंड देयर कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे. यू हैव वन प्लेस, सारी की सारी चीज़ उपलब्ध है, जिससे कि आप अपने काम को स्मार्टली कर सकते हैं. तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी स्मार्ट सिटी की लर्निंग, आज जो माननीय हमारे मानव संसाधन मंत्री जी, हमारे माननीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री जी जो आज अभी लॉन्च करने जा रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेटिव. और ये प्लेटफॉर्म आगे कितना ज़्यादा यूज होगा. इनफैक्ट सर, मैं आपके निवेदन करना चाहता हूँ, वी हैव अलाउड द स्टेट्स, दे कैन यूटिलाइज. हम इसको मॉड्यूलर तौर पे, जैसे स्टेट के बहुत सारे पैरा स्टेटल्स हैं, उनमें भी इंटर्न्स की जरूरत है, अगर वो चाहेंगे तो AICT के माध्यम से हम उसको बढ़ा देंगे. और भी तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशन अगर आप करना चाहें, बिकॉज इस समय हम कैसे यूथ को इंगेज कर सकते हैं, ये तमाम सारी फीचर्स, और हमने जो आज जो मैं मुख्य सचिवों को चिट्ठी में लिख रहा हूँ, उस चिट्ठी में इन सारी बातों का जिक्र किया है. मैं निवेदन करूँगा अपने दोनों माननीय मंत्रीगण से कि वो इस जो हमारा जो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, इसका लॉन्च करें. थैंक यू सर.
माननीय मंत्री जी श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, मेरे मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, एचआरडी मंत्रालय में सचिव श्री अमित खरे जी, चेयरमैन एआईसीटीई श्री अनिल डी सहस्रबुद्धे जी, मैं आप सबका और जो हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं सबका स्वागत करना चाहता हूं इस अवसर पर। सर, यह आपकी इंस्पिरेशन के साथ जो आपने आज लॉन्च किया है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम या ट्यूलिप, मैं समझता हूं कि जो हमारी अर्बन रिजुविनेशन, ये जो टर्म है अर्बन रिजुविनेशन, हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी जब हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्री थे तो उन्होंने कॉइन की थी। मैं समझता हूँ इस अर्बन रिजुविनेशन में ये इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसमें दुर्गा शंकर जी कह रहे हैं उन्हें विश्वास है कि पहले वर्ष में ही 25,000 फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर्स को ये हम इंटर्नशिप दे पाएंगे। मैं समझता हूँ इस अर्बनाइजेशन में एक बहुत ये महत्वपूर्ण और बहुत लाभदायक कदम होगा। आई जस्ट वॉन्ट टू ट्रेस फॉर यू मंत्री जी, जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, उस समय हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो करीब 15% थी ओवरऑल पॉपुलेशन में। ओवरऑल पॉपुलेशन उस समय कोई 350 मिलियन या 360 मिलियन या 35 या 36 करोड़ थी। जो हमारा 2011 का सेंसस है, उस समय 2011 में हमारी टोटल जनसंख्या करीब 120 करोड़ थी और अर्बन पॉपुलेशन इसमें से कोई 30-31% थी। हमारा अगला सेंसस तो आएगा, पर जो आंकड़े लेके हम अपनी अर्बन प्लानिंग करते हैं उनके अनुसार 2030 से लेके 2036 तक our urban population should be around 600 million और 60 करोड़ यानी कि 40%। अब विश्व भर में हम जब देखते हैं तो मैं समझता हूँ इंडिया इज ए sui generis case, it's one of a kind, because it is a case where urbanization assumes very important and very distinct features which contribute to the national GDP. अब देखा जाए कि the contribution of urban centers to the GDP overall terms 65% to the GDP. अरे अब 2030, 35, 36 तक हमारी अर्बन पॉपुलेशन सिर्फ 40% होगी, but the contribution to GDP already is 65%. हमारी contribution of the urban population to tax revenues is even higher, 90%. So, अगर इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप देखें तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे 2018 में पहले मैं आपको बता दूँ, इस समय 4,400 हमारे पास अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं और 100 हमारी स्मार्ट सिटीज़ हैं। दुर्गा शंकर जी जो कह रहे थे, मैं नया आया था इस मंत्रालय में, जो मैंने पहले स्मार्ट सिटी का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर देखा। ये स्मार्ट सिटी के ऑपरेशन में इंटरनेशनल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो होता है, इट इज़ अ नर्व सेंटर। यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन पे सारी जो अर्बन सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, sanitation, garbage, any service, that is all being mapped on a large screen, और लोग हमारे young people are manning those computers। तो आप मुझे याद है, एक मध्य प्रदेश में हम एक कमांड सेंटर के उद्घाटन में गए, तो आपको याद होगा शिवराज जी चौहान जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हमें डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये कैसे सर्विसेज होती हैं। तो स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट। तो
मुख्यमंत्री जी बैठ गए, उन्होंने ऐसे माइक के सामने अनाउंस किया, मैं शिवराज सिंह चौहान बोल रहा हूँ आपका मुख्यमंत्री। एंड सारी जो ट्रैफिक सिस्टम्स एट्सेट्रा लोगों ने देखा है क्या, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है, मैं उस समय भी इम्प्रेस था और मैं अक्सर यही कहता हूँ कि हमारी जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और इसके बारे शायद लोगों को जानकारी आहिस्ता आहिस्ता होगी, क्योंकि अभी 100 में से हमारे कितने कमांड सेंटर्स काम 47 काम कर रहे हैं, बाकी भी थोड़े लिटिगेशन 34 आ जाएंगे। जब 100 के 100 करेंगे तो उनका जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है बाकी सिटीज़ पे, अब लोग हमारे जो कॉलीग्स हैं मंत्री जी अलग अलग स्टेट्स में मुझे चिट्ठी लिखते हैं कि हम ये 2-3 अलग और शहरों को जोड़ना चाहते हैं स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट में। तो मेरा जवाब यही होता है, ये तो 100 ओरिजिनल इनिशियल सिटीज़ जो इलेक्ट हुई थी, जिनकी सिलेक्शन हुई थी, अगली बार होगा तो मुझे पर जो इन शहरों में काम होगा, पर देखिए इसमें एक बड़ी मुझे जो अभी हमने टेक्नोलॉजी से तो हम सब इम्प्रेस्ड हैं, बट कोविड के दौरान जो हम स्मार्ट सिटी के कंट्रोल सेंटर के माध्यम से कर पाए हैं, I think that you should document now. The time has come. How you are able to map, how you are able to find out, how you are able to utilize the data available for reasoned, data-based decision making. And that I think is something which needs to be documented. और मैं अक्सर ये कहता आया हूँ कि अगर मान लीजिए 2050 तक अगर हमारी 50% हमारी पॉपुलेशन अर्बन सेंटर्स में रहेगी, उसका आप देख लीजिए क्या उसका व्हाट द नंबर्स इन्वॉल्व, और ये 4400 अर्बन बॉडीज़ में यंग हमारे फ्रेश आउट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप करने आएंगे, तो द गेनर्स विल नॉट ओनली बी द यंगस्टर्स हु आर benefiting from that internship, but I think they will bring fresh ideas to the running of the urban local bodies. देखिए urban local bodies की एडमिनिस्ट्रेशन में आजकल समझता हूँ हमारे कई ऐसी योजनाएं हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन जिसमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, हम नेशन वाइड रैंक करते हैं सिटीज़ को। वी हैव प्रधानमंत्री आवास योजना, हमारी बाकी हमारे जो कार्यक्रम हैं अमृत जैसे है, हर एक में अर्बन लोकल बॉडी अस्यूम्स द मेजर पिविटल रोल। और मैं हमेशा इस चीज़ पे एगनाइज करता आया हूँ मंत्री जी कि अर्बन लोकल बॉडीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे। या तो हम जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को लाएं जैसे बाकी कंट्री, वो भी होगा, ज़रूरी होगा, बट वी नीड टू ट्रेन पीपल स्पेशली इन द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है। इसलिए ये आपका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव नहीं है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का, पर मैं अपनी तरफ से एक मेरी जो इच्छा है उसको मैं पब्लिक में रख दूं। आई होप दैट दिस प्रोग्राम ऑफ इंटर्न्स विच विल बी कॉम्प्रिहेंसिव will also result in our thinking along the lines of producing a specialized cadre. We are doing it very good, then you have already anticipated. Producing a specialized cadre. Because running an urban local body does not just require administrative acumen, it requires knowledge of engineering, technology, the art of managing, the art of raising revenue. Ultimately, जब urban local bodies have to be sustainable. आप उनको जो भी finance बाहर से दें. So this will require, and I'm sure that these first group of youngsters, let us decide today कि अगर आप ये ट्यूलिप का प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है और आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर शायद यहाँ बैठे हैं, तो आज से 1 साल बाद अगर 25,000 लोग जो भी हों, let us meet in a kind of a physical seminar, then hopefully by then webinars will not be necessary. We will try and see what experience we have got out of it. And then, I'm very happy that the collaborators here is the Ministry of HRD. You see, because ultimately, हमारे यहाँ कहना है कि आप प्रॉपर्टी खरीदने जाओ तो क्या कहते हो, वो पूछते हो लोकेशन लोकेशन लोकेशन, ठीक है। आपको
देश का the economic progress, well-being of the country, there's only one answer: education, education, education. So with the blessings of the Ministry of HRD and the active support and inspiration from Mantri ji and our very active secretary, I think this launch today, let us utilize this in order to really build to an effective, comprehensive, urban local bodies knowledge repository, and to build that into a cadre separately. Now, I had a speech which was prepared for me. We'll put that out on social media. But I want to recall something that the Honorable Prime Minister said addressing the youth in Karnataka in 2018. और उन्होंने कहा था, विद्यार्थी देवो भव. Now, if you have that kind of a sentiment, I think that places this in perspective. Because शिक्षा, विद्यार्थी, मैं आपसे आपकी leadership में, I think let us turn this interns program TULIP into a major component of our strategy towards getting our youth educated, engineering graduates, and getting them to dedicate to the work of our urban local bodies and our overall process of urbanization. Thank you very much. माननीय शहरी और नागरिक उड्डयन विकास मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी, शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर जी, हमारे उच्च शिक्षा के सचिव अमित खरे जी और नागरिक उड्डयन सचिव खैरवाला जी, सभी उपस्थित अधिकारी वर्ग, पत्रकार बंधु और देश के कोने कोने से जुड़े शहरी निकाय के सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी वर्ग, मैं समझता हूं कि आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, जो अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, ये एक भारत के जो नया भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत और एक भारत, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री की संकल्पना है, उस नए भारत के निर्माण की ये मैं समझता हूँ ये आधारशिला है। और क्योंकि ये नए भारत का निर्माण युवा से होकर के गुजरती है, वो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान से होकर के गुजरता है। और आज उसकी ये आधारशिला के लिए जो ये बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है, मैं इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय का और AICTE के चेयरमैन, हमारे यशस्वी चेयरमैन हैं अनिल सहर्ष बुद्धे, जिनके अथक प्रयास से ये आज महत्वपूर्ण काम हुआ है, इसलिए मैं अपने AICTE और शहरी विकास मंत्रालय के सभी अधिकारियों को, जिन्होंने ये बहुत खूबसूरत अवसर देश को, यूथ को दिया है, मैं बधाई देता हूँ। मुझे मालूम है कि हरदीप पुरी जी के सानिध्य में नित्य नए अभिनव प्रयोग होते हैं, और जब से मैंने जाना है उनको, उनके मन में, क्योंकि देश नहीं दुनिया के तमाम देशों में जो उनका काम करने का एक लंबा अनुभव रहा है, और जिस तरीके से उनकी शोधात्मक प्रवृत्ति है और कुछ रिजल्ट निकालने की अभिप्सा रहती है, तो निश्चित रूप में ये दोनों मंत्रालयों में आपके सानिध्य में जो काम हो रहा है, और अभी दुर्गा शंकर जी से मेरी चर्चा हो रही थी तो लगातार 6 वर्ष इनको उस मंत्रालय में हो गए, मजाक कर रहे थे मुझे, और कहीं कोई मुझे लेता ही नहीं है। तो ये जो विज़न शुरू किया है, और जो आज लगभग 4,500 शहरी निकाय हैं और 100 स्मार्ट सिटी हमारे देश के अंदर बन रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि देश की आर्थिकी और देश के सामयिक विकास की दृष्टि से भी
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को हमको छूना है, और उस अर्थव्यवस्था को छूने का भी जो रास्ता दिया है, वो रास्ता उन्होंने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप। मेक इन इंडिया, ये वो इंडिया है, वो जो भारत है, जिसकी विशालता को देख करके पूरी दुनिया भी हैरान होती है। मैं समझता हूँ यदि जैसे पुरी जी ने कहा है कि ये जो यूथ है और उसको किस तरीके से उसकी क्षमताओं का उपयोग हमको करना है। 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय जिस देश के अंदर हों, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज जिस देश के अंदर, 15 लाख से भी अधिक स्कूल हों, 1 करोड़ से भी अधिक अध्यापक हों, और कुल अमेरिका की जनसंख्या जितनी नहीं है उससे भी अधिक जिस देश में छात्र और छात्राएं 33 करोड़ से भी अधिक छात्र और छात्राएं हों, ये है वैभव देश का। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो शोध और अनुसंधान करने के क्षेत्र में हमारी प्रखरता दुनिया से कहीं कम नहीं है। मैं तो जब अपने AICTE के कितने कार्यक्रम, यहाँ चेयरमैन साहब बैठे हैं, पीछे के समय चाहे इनकी अटल एकेडमी इन्होंने शुरू करवाई हो, और चाहे इन्होंने लगभग कई कार्यक्रम, तो मुझे लगता है कि ऐसे अभिनव नीट कार्यक्रम शुरू किया, पाठ्यक्रम टोटली चेंज कर दिया। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए लगभग 1 साल में 1 लाख टीचर्स को आप ट्रेनिंग देंगे, और अटल एकेडमी के तहत तो चाहे वो 3D प्रिंटिंग का है, चाहे वो डाटा साइंस का है, मशीन लर्निंग का है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ये नए 15 अटल एकेडमी अभी स्थापित किए हैं। और उसके आधार पर मैं पुरी जी आपको कहना चाहता हूं कि जो विपुल संपदा है प्रतिभा की हमारे पास, आप उसका भरपूर उपयोग करिए। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि इस देश के अंदर प्रतिभा की, प्रखरता की, अनुसंधान के, शोध की कोई कमी नहीं है। हमने पीछे के दिनों में जब स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किया था, तो रक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो आपका शहरी विकास मंत्रालय हो, और चाहे वो कृषि मंत्रालय, तमाम समस्याएं आई। और मुझे ये बात कहते हुए खुशी है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में हमारे छात्रों ने जिस तरीके से उन समस्याओं का तत्काल निदान किया है, 84 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो वहाँ से उठा करके सभी मंत्रालय कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पूरे देश के लोगों के मन मस्तिष्क में आना चाहिए कि उनको अपने छात्र, अपने बच्चों को बाहर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी संस्थाएं समृद्ध नहीं हैं, सशक्त नहीं हैं, शिखर की हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है। और उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, दुनिया की बड़ी सी बड़ी कंपनियों में यदि CEO है, कार्यकारी निदेशक उसका है, तो हिंदुस्तान से पढ़ने वाला छात्र है। ये इसका प्रमाण है, एक नहीं मैं सैकड़ों प्रमाण दे सकता हूँ पूरी दुनिया में। अमेरिका से जितने भी विकासशील देश हैं उनमें बहुत बड़ी उपस्थिति में शीर्ष पदों पर बैठे रहने वाले मेरे IIT से, मेरे इन इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेरे इन विश्वविद्यालयों से निकलने वाला छात्र है। इसका मतलब ये है कि आज ज़रूरत है इस समन्वय की, आज इसी की ज़रूरत थी। मुझे बधाई देनी है AICTE को कि इन्होंने अभी जो पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल के तहत, और जो ये बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, इस प्लेटफॉर्म में अभी 40,000 उद्योगों को इन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया है। अभी तक हमारा गैप था, उद्योगों में क्या चाहिए, और छात्र, एक तरफ छात्र होता था, दूसरी तरफ उद्योग रहते थे, दोनों का समन्वय ही नहीं था। इस समन्वय ने टोटल समन्वय कर दिया। और मैं आभारी हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने वित्त मंत्री जी के इस बजट भाषण में इस बात को हमको प्रेरित किया कि जो हमारा छात्र युवा निकलने वाला है, ये इसको काम सौंपें, उसको बताएं वो क्या कर सकता है। और इसकी पहल, पुरी जी आपने देश के अंदर पहला विभाग है जिसने इसकी पहल की है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे भरोसा है कि आपके जो शहरी निकाय हैं और जो आपकी चिंता है,
इन छात्रों को, जिसको आप 8 महीने से लेकर के 1 साल, और मुझे लगता है कि जब उनका आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनको और आगे ऐसा बढ़ाना है कि यही जिस शहरी विकास की आप अभी आंकड़े बता रहे थे कि वो देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो ये जो छात्र है, ये जो मेरा इंजीनियरिंग से निकलने वाला, मेरी विश्वविद्यालय से निकलने वाले जो छात्र है, वो आपकी एक ऐसी संपत्ति बनेगा, ऐसी एक शिखर तक का वो बनेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम होगा। और अभी मेरे को बताया गया कि 40,000 तो अभी इन्होंने AICTE ने रजिस्टर्ड किए हैं, इसके आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। अभी AICTE के पास 80 लाख छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज और इसके हैं। उन 80 लाख छात्रों में और 6 लाख अध्यापक हैं। अध्यापकों को नित नए प्रशिक्षण देने के लिए जिस तरीके से ये अभियान लिया है, और वो जो 80 लाख छात्र हैं जो अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज, केवल इंजीनियरिंग कॉलेजों के देश भर के हैं, मैं समझता हूँ इनके हाथों में, जिनके हाथों में जो वो कौशल है, उसको आपके साथ समन्वय करके एक नई तस्वीर निश्चित रूप में भारत के सामने आएगी। और मैं ये आज जिस तरीके से आपने ये कार्यक्रम शुरू किया है, इन्होंने नीट एक जो जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ कि उसके आधार पर नेशनल एजुकेशन अलायंस टेक्नोलॉजी का जो आपने बनाया है AICTE ने, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी हमारे मंत्रालय ने, शहरी विकास मंत्रालय ने ये पहल की है। आज मैं सचिव अमित खरे को भी मैं कहूँगा कि सभी विभागों के साथ इस तरीके से एक अभियान हम लेंगे, और ये जो शुरुआत आज पुरी साहब ने किया है, ये देश का जो यूथ है, जिसके हाथों में कौशल है, जिसकी ज़रूरत है हर क्षेत्र में, वो लगभग यदि सभी विभागों को देखेंगे तो मैं मोटा मोटा आंकलन कर सकता हूँ कि एक वर्ष में इन आगे 2-3 वर्षों में 1 करोड़ छात्रों को हम इस अभियान में जोड़ सकते हैं। पुरी साहब, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, और आपने ये पहल की है, और मुझे भरोसा है कि आप इसको और आगे बढ़ाएंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो भी कोविड की आपने चर्चा की है, तो कोविड के तहत जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यूथ को कहा कि वो क्या कर सकते हैं, तो मुझे ये कहते हुए खुशी है कि चाहे मेरी ये AICTE के हमारे इंजीनियर हों, और चाहे IIT के हों, चाहे IISER के हों, चाहे IIM के हों, और चाहे वो NIT के हों, ये हमारे छात्र, शोध छात्र और हमारे अध्यापक ये घरों में कैद नहीं हुए, बल्कि ये प्रयोगशालाओं में आए और नित नए अभिनव प्रयोग किए, ऐसे अनुसंधान किए, जिन अनुसंधानों के आधार पर चाहे वेंटिलेटर बनाने का हो, सस्ता प्रभावी रिजल्ट देने वाला, चाहे टेस्ट किट का हो, कम दरों पर ज़्यादा प्रभावी और कम समय में टेस्ट जांच सुनिश्चित करने वाला की दिशा में हो, और चाहे वो ड्रोन हो, बहुत सारे क्षेत्रों में लगातार काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस समय जो हमारी यूथ जो काम कर रहा है, इसको अवसर चाहिए, इसको आप मैदान दीजिए। ये मैदान जो आपने आज दिया है इनको, मुझे भरोसा है कि जब अभी आप जो चर्चा कर रहे थे कि 1 महीने में आप अगले जब 1 साल के अंदर करेंगे तो वो जो 25,000 30,000 जो होंगे वो एक नए आधारशिला बन करके हमारे सामने देश का भविष्य के रूप में हम उनको देख सकेंगे, एक आशा के रूप में, बहुत अच्छी आशा के रूप में देख सकेंगे। अभी विदेशों में जाना आप बच्चों ने, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, हमने नीट और JEE की परीक्षाएं अभी सुनिश्चित की थी, लेकिन हम पर अब दबाव आ रहा है कि नहीं, जो बच्चे उन्होंने विदेशों में रजिस्ट्रेशन किया है उन बच्चों को यहाँ पर एक अवसर दीजिए। अब लोगों को लगता है कि जो छात्र यहीं के जो विदेश जाना चाह रहा था, वो अब अपना भविष्य यहीं के संस्थानों में तलाश रहा है। और मुझे खुशी है कि स्टडी इन इंडिया के तहत लगभग 40,000 से भी अधिक
विदेशी बच्चों ने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन किया है। और ये निकट भविष्य में जिस तरीके से हमारे स्पार्क, हमारा स्ट्राइड, इम्प्रेस सहित तमाम शोधात्मक गतिविधियाँ चल रही हैं, स्पार्क के तहत हमारी दुनिया की 127 शीर्ष दुनिया के विश्वविद्यालयों के साथ अनुसंधान चल रहा है। और चाहे ज्ञान हो, ज्ञान प्लस हो, तमाम इन योजनाओं ने, इन अनुसंधान के क्षेत्र में जो हमारी पहल हो रही है, निश्चित रूप में हम दुनिया का सबसे बड़ा गंतव्य शिक्षा का ये हिंदुस्तान को बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से ये प्रवेश बन रहा है, और आज आपने जो ये हमारे छात्रों को, मेरे युवाओं को ये जो खूबसूरत मौका दिया है, वो आपको निराश नहीं होने देंगे, बल्कि आपको लगेगा, गर्व होगा कि जो आपने ये शुरुआत की है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि करना हमने सब विभागों में है, लेकिन इसकी पहल आपने जल्दी की, तो मुझे इस बात की खुशी है कि जो आप में गतिशीलता है, जिस तरीके से आपने किया है। और दुर्गा शंकर जी, मैं आपको भी शुभकामना देना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी का विज़न है, उस विज़न को जल्दी से जल्दी आप की टीम पुरी साहब के नेतृत्व में धरती पर उतारने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। तो मैं आपकी पूरी टीम को भी बधाई देना चाहता हूँ। और अपनी AICTE के चेयरमैन अनिल सहस्रबुद्धे जी, आपके नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं, और आप भी किस सीमा तक के सक्रिय होकर के आपकी पूरी टीम को भी मैं देखता हूँ, वो पूरी मिशन मोड में रहती है। रोज़ नए एक कार्यक्रम को शुरू करते हैं और उसका रिजल्ट देते हैं। सबसे बड़ी बात, कार्यक्रम शुरू नहीं करना, उसका रिजल्ट कितना आ रहा है इसको भी देखना। तो आज एक बार फिर मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ। और सर, आपको बहुत सारी बधाई इस अवसर पर। और जो सारे देश के स्थानीय निकाय के हमारे अधिकारी वर्ग जुड़े हुए हैं आपके सामने, चाहे वो गंदगी की समस्या है, पेयजल की समस्या है, नित्य नए अभिनव प्रयोग की सीवरेज की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं जो आपके सामने फैली हैं, वही समस्याओं का समाधान आपके वरदान के रूप में ये मेरी जो छात्र आज जिनके लिए रास्ता तय हुआ है, इनका आप उपयोग करके उसी समस्या को वरदान के रूप में ये बदलेंगे। और ये अवसर इनको मिला है। मैं एक बार सभी छात्रों को भी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ, और सभी स्थानीय निकाय पूरे देश भर के जो शहरी निकाय हैं, उनके सभी अधिकारियों को और फिर जो उनके जनप्रतिनिधियों को मैं अभी बधाई देना चाहता हूँ। एक बार पुरी जी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, दोनों मंत्रालय और काउंसिल की तरफ से जो ट्यूलिप प्रोजेक्ट शुरू किया गया सर, हमें उम्मीद है कि हमारे नौजवानों के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिली है सर, ये बहुत लाभकारी होगी सबके लिए। हमारे साथी हैं सर, जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हैं, अगर किसी का कोई सवाल है तो मेरे को लगता है कि प्रेजेंटेशन और फंक्शन में हर चीज़ जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो गई। हाँ, किसी का कुछ प्रश्न हो तो। थैंक यू। ओके, नाइट सर, एक प्रश्न है सर, ये जो योजना है, इसके तहत जो स्टूडेंट्स इनरोलमेंट करेंगे, इसके बारे में कोई डिटेल अभी तक आया है कि किस तरह से करेंगे? और जो आप बता रहे हैं कि वेबसाइट्स जो है इसकी शुरू हो चुकी है, और अपॉर्चुनिटीज़ किस किस सेक्टर में मिलेगी उनको, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता पाएँ। ऐसा है कि ये अभी आप जा कर के, अब ये चूँकि लॉन्च हो गया है, अब आप इसका पूरा डिटेल, इसका मैनुअल, इसका सारा का सारा डिटेल जा कर के आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट फ्रीडम है अर्बन लोकल बॉडीज़ के। जैसे कि कोई शुरुआत करना चाहते हैं अभी इनोवेटिव फाइनेंस के लिए, इनोवेटिव फाइनेंस कैसे कि हम अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, कैसे हम जो पैसे को सही तरीके से खर्च कर सकते हैं, उसमें इंटर्न लेना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर कोई चाहते हैं अर्बन प्लानिंग में, अर्बन प्लानिंग ले सकते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे, स्वच्छ भारत से लेकर के वाटर एंड क्लीन वाटर, इसके मैनेजमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो आप खुद ही डिफाइन करेंगे कि हम किस विषय में लेना चाहते हैं, कैसे लोगों को लेना चाहते हैं, क्या उनकी स्किल होनी चाहिए, और एक फ्रीडम इनके तरफ है। इनको क्या क्या सुविधा देंगे, इनको हम लोग डेस्क देंगे, अपने अर्बन लोकल बॉडी में डेस्क देंगे, उनको आने जाने की सुविधा देंगे वगैरह वगैरह। प्लस दूसरे तरफ ये सुविधा दूसरे वेले के कि हम कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं,
हमारे पास क्या स्किल है। तो एक फ्रीडम इधर मैंने दोनों लोगों को हम एक जोड़ दिए। जैसे माननीय मानव संसाधन मंत्री जी ने कहा इंडस्ट्री के बारे में कि आप इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ऐसे अर्बन लोकल बॉडी में आप करना चाहते हैं। पहले तो था ही नहीं, पहले बार शुरुआत हुआ वित्त मंत्री जी के कहने से, लेकिन इतने फ्रीडम के साथ कि आप जो करना चाहें और दूसरे वाला जहां चूज करना चाहे, दोनों को ये प्लेटफॉर्म जोड़ देगा। और ये एक्सपेंडेबल है। ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसा कि जो आज होगा अगले साल और इम्प्रूव करेंगे और बढ़ाएंगे, ये एक मॉड्यूलर इम्प्रूव करता चला जाएगा। देखिए इसमें थिंकिंग ये है कि हमारी तरफ से प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो। अर्बन सर्विसेज जो है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, पूरी रेंज है। मतलब अगर तो लिस्ट बनानी शुरू करें तो बहुत लंबी है। तो जो इंटर्न आएगा उनकी जो पर्सनल इंटरेस्ट होंगी, तो फिर अर्बन लोकल बॉडीज उनके इंटरेस्ट को मैच करने की कोशिश करेगा। और ये स्कीम हमने और जगह भी चलाई हुई है। जो हमारी आईटेक स्कीम है, विदेश मंत्रालय चलाता है, बाहर के देशों से लोग आते हैं के लिए, वो भी जो आते हैं वो खुद चाहते हैं। कुछ लोग एग्रीकल्चर में चाहते हैं, कोई किसी एरिया में चाहते हैं, एट्सेट्रा। तो इसको, ये तो अभी शुरुआत हुई है, जो मैनुअल में लिखा हुआ है, पर फिलॉसफी यही रहेगी कि इसको हम एक्सपैंड करें। कई ऐसी एरियाज होंगे जो एग्जिस्टिंग अर्बन लोकल बॉडीज शायद उसको सिस्टमेटिकली देख नहीं रही, पर ब्राइट यंगस्टर्स कमिंग इन विद फ्रेश नॉलेज, उनको दे मे बी एबल टू पॉइंट आउट कि आप इस डायमेंशन को भी करिए। तो इट्स अ गुड मॉडल और इट्स अ वेरी डायनामिक मॉडल। 79। मेरा सवाल ये है कि क्या इंटर्नशिप का टेनियर क्या होगा। मान लीजिए इंटर्नशिप का जैसे हम लोग मीडिया में करते हैं, तमाम जगह करते हैं, तो 3 महीने 6 महीने, क्या इंटर्नशिप का टेनियर क्या होगा। क्या इंटर्नशिप के दौरान बच्चों को कुछ अमाउंट भी दिया जाएगा, पैसा भी दिया जाएगा। और तीसरा, क्या इनको एब्जॉर्ब भी किया जाएगा परमानेंट नौकरी के तौर पे। क्या इनका कोई और भी प्लान है आगे का। देखिए, अगर तो आप शुरू से ये लेके चलेंगे कि इंटर्नशिप का मतलब है कि इसकी अब्जॉर्प्शन हो, मैं आपके जो आपने 3 सवाल पूछे उसका मैं एक का उत्तर देने की कोशिश करूंगा, तो फिर वो कंस्ट्रेन हो जाएगी। कई लोग ऐसे होंगे जो इंटर्नशिप के लिए आएंगे इसलिए क्योंकि उनको एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस को लेके वो कहीं प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन सारी ओपन होगी। हर एक इंटर्नशिप का, जो मैंने दुनिया भर में देखा है, अपने यहाँ भी, इंटर्नशिप ज़्यादातर एक्सपीरियंस एक्वायर करने के लिए होती है। तो इसलिए कई लोग प्रीमियम देते हैं साथ में। जहाँ तक मैंने जब दुर्गा शंकर जी से बात की थी, हमारे पास दोनों मॉडल्स होंगे, पर मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बताएं आपको एग्जैक्टली क्या। मैं एक ये भी बताना चाहता हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हमारे जो एडिशनल डीजी मीडिया है, मिस्टर राजीव जैन कहाँ पे, यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, ये सामने आप सारे, ये आप सबको सारा मेल कर देंगे। इट इज़ अवेलेबल। हमने हार्ड कॉपी इसलिए नहीं रखा बिकॉज ऑफ कोविड के नाते कि एक जगह से दूसरी जगह जाए। ये सारी सॉफ्ट कॉपी अभी तुरंत मेल कर देंगे, बाकी हमारे वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध होगा। और ये कंप्लीट फ्रीडम हमने, जो जैसा कि सर ने कहा, ये अर्बन लोकल बॉडी को रखा है। जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम है, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का, जो तमाम सारे प्रोग्राम है, उसके भी जो हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग के फंड है, वहाँ से कुछ एक फंड करना चाहें, उनको पार्ट फंड करना चाहें। मेन पर्पज़ ये है कि उनको मार्केट रेडी करना। अदरवाइज आप पढ़ाई तो कर लेते हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इंटर्नशिप के आधार पे आपका एक्सपीरियंस होगा, देन यू आर मच बेटर एब्जॉर्बेबल बाय द इंडस्ट्री, बाय द कंसल्टेंट। तमाम सारे लोग, आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड समथिंग। देखिए, इसको 2 स्टेप में मत देखिए। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करता है और इंटर्नशिप के लिए अर्बन लोकल बॉडी जाता है। हमारे यहाँ देश में कई स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है, हमारे वो मंत्रालय का, और इंस्टीट्यूशन दुनिया, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं तो चाहूँगा, क्योंकि अर्बन स्पेस के जो इम्पोर्टेंस है हमारी इकोनॉमी में वो बढ़ता जा रहा है, हम तो सबको, यूनिवर्सिटीज़ को भी इनकरेज करते हैं कि अर्बन अफेयर्स का एक डिपार्टमेंट खोलिए। वो सिविल इंजीनियरिंग का तो होता ही है, पर ऑल एस्पेक्ट्स को लेके तो एक इकोसिस्टम बनेगा। पर इकोसिस्टम तब अच्छी तरह बनेगा जब इनटेक उसमें रेगुलर हर साल 25,000 लोग आएंगे, तो आप देखेंगे दिस कैन बिकम अ मॉडल। दूसरा, मैं इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता हूं और सहस्त्रबुद्धे जी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और अमित खरे जी को भी,
देखिए ये तो हमने हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से कर लिया। मेरी जो बाकी 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं जिसमें मैं एसोसिएटेड हूँ, सिविल एविएशन, आई थिंक वी शुड डू इट देयर ऑल्सो। देखिए बिकॉज सिविल एविएशन इज़ अ वेरी क्रिटिकल ड्राइवर ऑफ ग्रोथ। हमारी 7% 8% पेनिट्रेशन के साथ हमारी 16-17% ग्रोथ रही है एक ज़माने में। कोविड से थोड़ी हमारे को जैसे सबको भी नो रेवेन्यू स्ट्रीम, बट ऑल्सो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जो मैं पीयूष जी के साथ जहाँ पे मैं अटैच्ड हूँ। देखिए दुनिया भर में जब यूनिवर्सिटी में अब हमारे जो छात्र पढ़ने जाते हैं यूएस, कनाडा, बाकी देशों में, उनका समर जब होता है, समर इंटर्नशिप करते हैं, तो हमें ये एक कॉन्शियस डिसीजन लेना चाहिए टू इनकरेज यंगस्टर्स टू इंटर्न बोथ ड्यूरिंग देयर एजुकेशन एंड इमीडिएटली आफ्टर एजुकेशन। और उसके साथ एक जो इकोसिस्टम बनाएंगे, जो इंडस्ट्री वाले भी हैं, पोटेंशियल एम्प्लॉयर, वो भी फिर देखते हैं कहाँ कहाँ इंटर्नशिप हो रही है, कहाँ कहाँ कैसे वो रिक्रूटमेंट करें। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बिगिनिंग और आई वुड इनकरेज यू टू स्टार्ट लुक एट दैट। सर सही कहा आपने सर। हमारे यहाँ जो पोर्टल डेवलप किया है ये तुलिप के लिए स्पेशलाइज्ड है कि जिनके ग्रेजुएट हुए उनके लिए विद स्टाइपेंड लोकल बॉडीज अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देकर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, रूल इंजन बेस्ड है। छात्र की इच्छा जो है और जिस लोकल बॉडी की इच्छा है, दोनों को मैच करने का इसमें प्रावधान है। लेकिन हमारे दूसरा इंटर्नशिप जो हमने मैंडेटरी किया हुआ है, उसमें करीब 40,000 इंडस्ट्रीज के साथ हमारा एमओयू है और करीब 2.5 लाख के ऊपर इंटर्नशिप्स आज ऑलरेडी अवेलेबल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से ये हम बढ़ावा देते रहेंगे और अलग अलग मिनिस्ट्री के साथ भी बातचीत चल रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी 10,000 की इंटर्नशिप हमको देने की उनकी तमन्ना दिखाई दी। 64। मंत्री जी, आपने जब ये पोर्टल लॉन्च हुआ तब आपने कहा कि इस तरह के पोर्टल के लॉन्च होने से इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, कोरोना के समय में इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो पीएम का सपना है वो पूरा होगा। लेकिन राहुल गांधी जब राजीव बजाज से बात करते हैं तो उनका कहना है कि लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है, कोई सच नहीं कहना चाहता है। कैसे देखेंगे इसे? कोरोना पूरी दुनिया में आया है, वो केवल हिंदुस्तान में नहीं आया है। और जिस तरीके से पूरी दुनिया इस गहरे संकट से होकर के गुजर रही है, हम कह सकते हैं कि दुनिया के उन परिस्थितियों में हिंदुस्तान आज भी सशक्त तरीके से खड़ा है। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो जो शहरी है और जो ग्रामीण है, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का जो नया जो एक रास्ता तय हो रहा है, निश्चित रूप में आज भी आपने देखा होगा कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी हमारी लोगों ने काम किया है और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। अब कौन क्या कह रहा है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देश खड़ा है। ऐसे वक्त पर सब लोगों को इकट्ठा होकर के बजाय नकारात्मक बात करने के सकारात्मक बात करें, लोगों का मनोबल उठाएं, क्या इन विपरीत परिस्थितियों में रास्ता हम बना सकते हैं, इस दिशा में काम करेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी उस रास्ता निकाल रहे हैं और उसके रिजल्ट आ रहे हैं। 84। सर, हरदीप पुरी सर से आई वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन सर। इट्स अबाउट सिविल एविएशन से जुड़ा है, अगर आप लेना चाहें सर। काफ़ी सारे जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में जो पैसेंजर बुक करें वो ये शिकायत करें कि फ़्लाइट कैंसिल हो जा रही है और फिर उसके बाद वो कॉल सेंटर को कॉल कर रहे हैं तो किसी तरह का रिस्पॉन्स उनको नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन है पैसेंजर्स के बीच में। उसको लेकर के आप क्या कर रहे हैं? I would have been surprised if you did not ask a question on civil aviation. तो मैं इसलिए पूरी तैयारी करके लाया हूँ अपने सारे आंकड़े लेके। देखिए, I don't want to transgress on the previous question, but किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, किसी डिसीजन मेकर के लिए ये बैलेंस करना बिटवीन लाइफ एंड लाइवलीहुड, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दी, we were one of the first countries in the world to stop flights from China. We were one of the first countries, I think perhaps the first. We started screening passengers. मैं बताता हूँ आपको, हमने total number of flights screened from 18th January. आप तो
बाद की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन की 23 के बाद थोड़ा सा आपको हिस्ट्री दे दूं। 18 जनवरी को हमने फ्लाइट स्क्रीन करनी शुरू की 23 मार्च तक, और 18 जनवरी से लेकर 23 मार्च तक हमने 14,154 फ्लाइट्स वी स्क्रीन। We screened 15,24,266 passengers. The total number of passengers which we were referred, I have total number of people so even before the lockdown we did this. And because of that, today, हमारी population है 1.35 billion. Total number of cases हमारे मान लीजिए हैं 2 लाख, जिसमें 1 लाख 50% रिकवरी रेट है, लोग रिकवर भी कर गए हैं, और बाकी 1 लाख भी करेंगे रिकवर, क्योंकि हमारा मोर्टेलिटी रेट इज़ अबाउट 2.8%। और हमारी अगर टोटल नंबर ऑफ डेथ्स 5,000 हुई हैं, यू कंपेयर दैट मैडम टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 1 डेथ इज़ 1 डेथ टू मैनी। पर जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा, ये तो दुनिया भर में समस्या आई है, और आप देखिए जो दुनिया में एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ देखिए व्हाट इज द सिचुएशन वे। सो प्राइम मिनिस्टर्स टाइमली, इफेक्टिव एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन resulted in us being much better placed today. So total, we have, the latest figures I saw yesterday, 5,000 deaths, but the mortality rate is only 2.84%. और इसमें भी जो mortality हो रही है, large number of cases, majority of cases are people with pre-existing conditions or comorbidities. तो ये भी देख के चलिए। जहाँ तक flights का resumption की बात है, lockdown was imposed on 23rd March. मैंने ये स्टेटमेंट दी थी करीब 15 मई के आसपास। हमारे जो एयर कैरियर्स हैं और हमारे जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, उनसे बात करने के बाद कि 15 मई से वी वर ऑलमोस्ट रेडी टू resume operations. But you know, the decision, being ready in terms of airlines and airports is one thing, but the decision to resume operations can only be taken when the states, we have a cooperative federalist structure, हमारी states को भी तैयारी होनी चाहिए। तो हमें 22 तारीख को गो हेड मिला, जब हमने states के साथ चर्चा की। और मुझे याद है जब मैं एक टीवी एंकर के साथ था, वो थोड़ा सा एग्रेसिव है वो, और मुझे कहा कि नहीं आप तो फ्लैट चालू कर रहे हैं, पर उसने किसी स्टेट का नाम, वो तो तैयार नहीं है। तो मैंने कहा पोलाइटली जितनी भी हो सका, मैंने कहा नेगोशिएट हम कर रहे हैं। उन्होंने जो हमसे कहा, हमें लगता है कि शुरू हो जाएंगी फ्लाइट्स, पर उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई हम डिस्कशन में हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपको फ्लाइट्स का बताता हूँ। 25 से जब हमने शुरू की 3 तारीख तक, कल तक, आपको टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स बता देता हूँ रोज़ कितने हुए, एंड दैट विल गिव यू अ पिक्चर एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स और पैसेंजर्स, और मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा, आई कैन पुट इट ऑन द वेबसाइट। 25 तारीख को 832 पैसेंजर एयरक्राफ्ट मूवमेंट थी। एयरक्राफ्ट मूवमेंट का मतलब ये है कि एक जगह से फ्लाइट टेक ऑफ करती है, दूसरी तरफ लैंड करती है। 832 टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स उस दिन सी 428, एंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरिड वाज 30,000 और सो। और जो कन्फ्यूजन हुई है वो पहले दिन हुई है। वो इसलिए हुई क्योंकि हमने जब स्टेट से बातचीत की, कुछ स्टेट्स ने एडिशनल, देखिए हमने एतवार 24 तारीख को एक नेशनल गाइडलाइन इशू की थी, और नेशनल गाइडलाइन ये थी कि डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए, अगर आप मान लीजिए दिल्ली से आप कोलकाता जाते हैं, तो आप 7 दिन और 7 दिन का क्वारंटीन, 7 दिन सेल्फ मॉनिटरिंग और 7 दिन आप क्वारंटीन में रह सकते हैं। नहीं, ये इंटरनेशनल के लिए कि आप 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फॉर इनकमिंग पैसेंजर, 7 दिन सेल्फ मॉनिटरिंग, और डोमेस्टिक हमने कहा कि आप सेल्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बट कुछ स्टेट्स ने ये समझा एंड इन अ फेडरल स्ट्रक्चर कि हम थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं उसको, ठीक है। तो अगर एक जगह में सेल्फ मॉनिटरिंग थी, दूसरी जगह नहीं, और कुछ स्टेट्स ने हमें ये कहा, जैसे वेस्ट बंगाल ने कहा कि वेस्ट बंगाल क्योंकि वो साइक्लोन था, उसके लिए वो 3 दिन लेट शुरू करना चाहते हैं। 1-2 और दक्षिण सदर्न स्टेट्स ने भी कहा हमें 1 दिन टाइम चाहिए। महाराष्ट्र ने कहा हमें फ्लाइट्स थोड़ी कम कर दीजिए और सिर्फ 25 डिपार्चर और 25 अराइवल करिए।
तो पहले 1-2 दिन था, इसमें और कोई कंफ्यूजन नहीं था। मैं आपको फ्लाइट्स बता दूं, 25 तारीख को जो पैसेंजर्स थे 30,550, 26 को 31,000, बढ़ते बढ़ते ये पहली तारीख को इट रीच 64,000। हमने अभी 33% फ्लाइट्स की रिजम्पशन की बात की है। 33% फ्लाइट्स का मतलब है ये जो आंकड़ा है जब 1 लाख पे पहुंच जाएगा, दैट वुड बी 33। अगर मान लीजिए जैसे कल महाराष्ट्र में देयर वाज अ वेदर कंडीशन, क्लियरली 3-4 घंटे के लिए फ्लाइट्स को हमें रोकना पड़ा बिकॉज ऑफ प्रिवेंशन। तो अगर मान लीजिए अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मुझे उम्मीद है कि ये जो 65,000 हम पहुंचे थे पहली तारीख को, कल बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र थोड़ा था कम था, कोई 60,000 से थोड़ा नीचे था, मैं समझता हूँ अगले 4-5 दिन हफ्ते में हम 1/3 तक पहुंच जाएंगे। और 1/3 तक पहुंचे हुए देन अदर सिस्टम्स फॉल इन प्लेस ऑल्सो। और मैं समझता हूं कि बाकी जो हमारी सिविल एविएशन वो है, वो 50% जब डोमेस्टिक सिविल एविएशन पर पहुंच जाएंगे। और मैं एवरी डे आई मॉनिटर कितनी फ्लाइट्स की रीस्केड्यूलिंग हुई। मैंने बोला पहले दिन हुई प्रॉब्लम, पहले दिन अगर आप मान लीजिए आप 25 की जगह हम 4 जून को शुरू करते तब भी होनी थी, बिकॉज दैट इज सिस्टमेटिक। 2 महीने सारे सिस्टम बंद रहे हैं, जब शुरू होगा तो कुछ हुआ। आजकल फ्लाइट्स की रीस्केड्यूलिंग कल ज़्यादा थी बिकॉज ऑफ मुंबई, बिकॉज 3 घंटे 4 घंटे एयर ट्रैफिक बंद रहा। पर ज़्यादातर मतलब अगर आप 60,000 पैसेंजर 65,000 पैसेंजर ले जा रहे हैं, आपके टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट 650 हैं, उसमें 10-12 रीस्केड्यूल भी हो गई क्योंकि किसी एयरलाइन के कारण। ये तो नॉर्मल, जब बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल हो तब भी। बट कंसिडरिंग द चैलेंजेस दैट द सिविल एविएशन सेक्टर है, मैं अपनी एयरलाइंस को, अपने जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ और सो इकोसिस्टम में स्टेक होल्डर्स है, आई वांट टू पे अ कॉम्प्लीमेंट टू देम कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विद एज लिटिल प्रॉब्लम एज पॉसिबल उन्होंने इसको किया है। थैंक यू वेरी मच सर। लास्ट क्वेश्चन 39। सर मैं वापस उसी विषय पर आना चाह रहा था। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर एक लोकल बॉडी में कितने बच्चे काम करेंगे, इस चीज़ को डिसाइड कौन करेगा? एक चीज़। दूसरी चीज़, उनका सिलेक्शन किस आधार पर होगा? क्या कहीं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनके मन में कोई ऐसा ख्याल तो नहीं आएगा कि किसी गलत तरीके से हम सिलेक्शन हुआ? इस चीज़ के लिए आपने क्या इंतज़ाम किया है? देखिए, इसमें मैं चाहूँगा कि दुर्गा शंकर जी आपको डिटेल में जवाब दें, पर मैं इसकी फ़िलॉसफी के बारे में बताऊँ। जब ये स्कीम की बात चर्चा हुई, जब निर्मला जी ने बताया, तो हम लोगों ने आपस में बात की, बहुत बढ़िया स्कीम। देखिए, इसमें अब रिजिड मत हुई है। देश में 4,400 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं और आपके यहाँ कुणाल के यहाँ 100 स्मार्ट सिटी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। तो मान लीजिए 4,005 तो हो गए सीधे। ओके, अब जितने हमारे लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर मान लीजिए हर एक ग्रेजुएटिंग क्लास में 10-15 भी अर्बन स्पेस में अपनी इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो अर्बन लोकल बॉडीज़ कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, दे विल डिसाइड कि वो कितने लेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से प्रिस्क्राइब करना कि इस 5 से ज़्यादा नहीं होंगे 10। दूसरा, इसको हमें फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। कौन सिलेक्ट होगा नहीं होगा, हमारा क्या अटेम्प्ट है इस समय। क्यों मैं कह रहा हूँ, अभी मैंने क्यों सजेस्ट किया और मुझे बड़ी खुशी हुई सहस्रबुद्धे जी से ये जानकारी पाने में। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी वो 40-50 हज़ार इंटर्न्स का ऑलरेडी स्कीम है। तो देखिए, आप जितना इकोसिस्टम में अपॉर्चुनिटी बढ़ाएंगे फॉर ग्रेजुएट्स टू गो एन इंटर्न, टू कंट्रीब्यूट, टू गेन एक्सपीरियंस, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी में इंप्रूवमेंट आएगी। तो मैं समझता हूँ इसको हम थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें। बाकी आपको दुर्गा शंकर जी इसमें डिटेल्स फिल इन कर देंगे। देखिए, ये प्रोग्राम जैसा सर ने कहा कंप्लीट फ्लेक्सिबल है। अब मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे लखनऊ है, मैं लखनऊ इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश काडर का हूँ, लखनऊ से ज़्यादा वाकिफ हूँ। मैं कहीं का भी एग्जाम्पल आप मान के चल सकते हैं। तो लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसकी बहुत बड़ा दायरा है, करीब 25-30 लाख लोगों को सर्व करता है। उसके बगल में बक्सी के तालाब है, नगराम है, गोसाईगंज है। ये छोटे छोटे टाउन एरियाज हैं। कुछ नगर पालिकाएँ में, मलिहाबाद नगर पालिका है, ये नगर पालिका है। तो लखनऊ में बहुत किस्म की रिक्वायरमेंट होगी, प्लानिंग की भी होगी, फाइनेंस की भी होगी, उनकी जो है हमारे
सैनिटेशन के बारे में होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में होगा, वो चाहेंगे कि 10-12 लोगों को हम अपने साथ रख लें। लेकिन वो एक छोटी सी टाउन एरिया जो है, वहाँ से 40 किलोमीटर दूर, और टाउन एरिया की आबादी मुश्किल से 12-15 हज़ार की आबादी है। उनके लिए पहले बार ये पहला अनुभव होगा, उनके कॉन्फिडेंस होगा। वो एक आदमी को रखना चाहेंगे कि चलो हमारे पास इसमें स्वच्छ भारत का कार्यक्रम चल रहा है, अभी हमारा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए हम लाए कि कैसे हम करें कि वेस्ट वाटर, ये हमारा जो वेस्ट है उसको सही तरीके से मैनेज कर सकें। कैसे हम अभी गार्बेज फ्री सिटी, अभी हाल में हफ्ते भर पहले माननीय मंत्री जी ने, आपको याद होगा कि गार्बेज फ्री सिटी का जो स्टार रेटिंग दिया था, कैसे हम अपने शहर को 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार ला सके। तो एक नया जो लड़का जो कि इसके बारे में ट्रेनिंग किया, वो कैसे हमको मदद कर सकता है। तो ये वो कोई एक करेगा। मलिहाबाद की जो नगर पालिका, वो 2-3 आदमी को, 4 आदमी को लेगी। वो अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट को डिफाइन करेगी, और ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। वो अगले बार कुछ और भी कर सकते हैं, 2-3 बढ़ा सकते हैं, 2-1 घटा सकते हैं। अब इसमें कौन से लोग आएंगे, ये तो ओपन प्लेटफॉर्म है, कहीं से भी हो सकता है। मलिहाबाद का बच्चा, कोई आसपास का बच्चा है, वो जाकर के पढ़ रहा है, त्रिची में पढ़ रहा है, या जाकर के केरला में किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, वो 5 साल से वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। वो पढ़ाई करने के बाद उसको एक मौका नज़र आया, अभी वो जॉब रेडी नहीं है, उसने पढ़ाई कर ली लेकिन उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये वर्किंग ऑन ग्राउंड आपको एक्सपीरियंस होगा जब आप पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए जब प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, डीपीआर आप बनाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे ये बनाया जाता है। तो आप इसकी जब काम करने के लिए उसको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे कि वो दूसरी कहीं भी एम्प्लॉयबिलिटी उसकी बहुत हाई हो जाएगी। तो वो वहाँ से देख सकता है कि ठीक है, रहने वाला वहाँ के मलिहाबाद का है, तो आसपास के इलाका में, हरदोई में, लखनऊ में या सीतापुर में, उधर आसपास में कहाँ उसको इंटर्नशिप मिल सकती है, उसको देख सकता है। वो सीधे सीधे उन्हें अप्लाई कर सकता है, वहीं से वो अपना इंटरव्यू भी दे सकता है। ये सारा का सारा कंप्लीट व्यवस्था एक तरह से ऑनलाइन व्यवस्था है, जिससे कि कहीं भी किसी प्रकार से उसको जर्नी करनी है, उसको सिलेक्शन मिला, उसको सीधे लेटर मिला कि अब आप आइए और फला तारीख से आप इंटर्नशिप ज्वाइन करिए। तो इट इज़ अ वंडरफुल सिस्टम जो कि कंप्लीटली एक फ्रीडम देता है दोनों पक्षों को। और दोनों पक्षों के बाद जब बाद में इंडस्ट्री भी चाहेगी, अगर इंडस्ट्री देखना चाहते कि इस प्रकार के स्किल वाले कितने लोग हैं अगर हमको चाहिए, तो वो भी उनको सीधे सीधे हमारे पोर्टल से ही उसको पिक कर सकते हैं। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है इस बंदे ने ये फला काम किया, उसके जो अच्छे कामों को वो भी सारा सारा वहाँ पर रिकॉर्ड होगा। तो एक तरीके से ये इंडस्ट्री के लिए, एकेडमिया जहाँ पे ये सारे ये लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, सबके लिए एक तरह से विन 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 टाइप का सिचुएशन है। और कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, फुल्ली अकाउंटेबल है, ओपन सिस्टम है, ऐसा नहीं कि कहीं किसी प्रकार का बंधन है। बाकी मैं एक बात ये भी बता दूं, ये तो सिस्टम ने काफ़ी सोच विचार करके पिछले करीब 4 महीने से, जब हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जब अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद हम लोग इस सिस्टम के ऊपर चालू हो गए थे, प्रारंभ कर दिए थे कि इसके बारे में कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। लेकिन हमें अभी बहुत सारे अनुभव होंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी, जो ऐसी चीज़ें जो हम लोग शायद उस चीज़ को हम नॉन अकाउंट फॉर किए, तो वी विल कीप इम्प्रूविंग अवर सिस्टम। ऐसा नहीं कि हमने एक हार्ड एंड फास्ट रूल बना लिया। जो हमारा अनुभव होंगे, अगर ऐसा नज़र आता है कि इसमें ये फला फला किस्म का सुधार किया जाए, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे अर्बन लोकल बॉडी को आत्मनिर्भर बनाना होगा, हमारी हर व्यवस्था को सुधार करना होगा। अगर हमारे गोल बड़े क्लियर हैं तो उस गोल को पहुंचने के लिए हम अपने सिस्टम को सुधार करते हुए और आगे बढ़ेंगे। और मैं समझता हूं कि इसके बारे में हमने चर्चा की है राज्य सरकारों से भी, अर्बन लोकल बॉडी से, जो तमाम सारे देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से, एवरीबडी इज एक्साइटेड अबाउट इट। मैं आपको ये फीडबैक देता हूँ, यू कैन टेक ए फीडबैक। आप हमारे जर्नलिस्ट के तौर पे आप बात कर सकते हैं। एवरीबडी इज एक्साइटेड अबाउट इट कि ऐसा सिस्टम आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं पहले बार, इससे लोगों को फायदा होगा। थैंक यू। मैं मंच पर आसीन अपने अतिथियों का, मीडिया कर्मियों और बाकी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।